Yes, very good evening to everyone. Let us begin with the queries. Hans Polo. हेलो हाय सर, गुड इवनिंग Very good evening. सर। एक बार वो बिलो बिलो बीडीपी एंड अबव बीडीपी एसएनआर जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक में जाके जो अपन निकाल वी फिल्टर आउट द स्क्रिप्ट्स। सो एक बार सर वो समझना था विदाउट रिवर्सल बाय सेल हाउ कैन वी टेक अ ट्रेड इन दैट? There is two ways. You've been entered as an attendee in listen. Post in trade setup pages. Future stock. Weekly. ओके हेलो हेलो ओके सर, इट इज लोडिंग ना। आई थॉट द स्क्रीन हैज गॉट फ्रीज ऑन माय एंड। The voice was lost. It was not. Audio was not working. Now this Yes, is audio. post pages. Weekly. Here let us say going to buying in trending. 47 Okay. scripts. Live opportunity buying. 21 scripts. We have opted one is current time frame, currently trading with retracement, and then low time frame trade with support. The same Yes, way, sir. according to this, when it is greater than WDP, means stop and is to buy above WDP. There are 7 records. All these 7 records are in buying. Okay. One buying. But when it is both has occurred, we have preferred to ignore this. This you can buy Conquer. 18th November, stop and is to buy above WDP. This both has occurred, however, you can leave it. Jindal Steel is in buying on 19th November, stopping is to buy above WDP. This already filters reversal by sell occurrences. Okay. Though I have not shared reversal by sell with you, but this filters out only those scripts which is in buying according to reversal by sell concept. Okay. ठीक है? No, सर इसमें सर सो कैन वी कम टू जिंदाल स्टील नीचे? हाँ सर, इसमें सर WDP के बाजू में एंड कुछ तो आ रहा है सिंबल ऑन 19 नवंबर। Then after this we should go to Jindal Steel. The record sheet summary. सर टाइम फ्रेम शुड बी वीकली ना और डेली ओनली? This is weekly time frame. Post trade sector pages, but stop and use to buy whole WDP is in lower time frame. Okay, okay, okay. Got it. Okay. For weekly, it is not a frame even for reversal buy sell traders. For weekly, it is yet to be developed. Only for daily time frame, it has been developed. Now, Jindal Steel. By about WDP. Now open this plan.
the stop and buy above WDP Hmm. on 19th November at 10:30. It has occurred above 38.2%, right? Yes, sir. So if occurs below 38.2%, we'll buy immediately. If it occurs with FC 38.2% TVHS or FC 11.8% TVHS or stop and use to buy occurs with RC 38.2% TVHS in this case, then we wait for the retracement. We will not buy immediately. Okay. And here it is retraced, maximum retracement has occurred at 229.05. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Here we can buy. And there is two strategy. One is from this target used to buy occurrence price 231, project 5%. This is for reversal buy sell traders. And for weekly time frame traders, Jindal Steel, RMCL higher open, maximum retracement has occurred on 18th November at 10:30. After that, we are buying, so we can project that RMCL higher open and this climbing buy, opening climbing buy will be traded on higher side. 235 is traded on higher side, and ATR journey will complete. Sir, ATR journey is completed on 237, ना 237.45. So वो बहुत आए नहीं गए पे. Whenever 237.45 falls were in between RC 127.2 and 161.8, right? Right. The moment RC 127.2% trades on higher side, Okay. will be mentioned ATR journey completed. We can Okay. continue to, there is nothing that we should not continue to hold, but still once in between two levels, 127.2 and 161.8, where ATR journey completes, and it is also blinking here, the moment 127.2% trades on higher side, और जहाँ पे ATR journey complete होती है, उस घर में बाजार आ गया. This is the psychology. उस घर में बाजार आ गया. Exactly 237 का भाव आना जरूरी नहीं है. Now after, now we can shift जो हम यहाँ पे कहते हैं कि there is 3 journey, and when opens into RMCL higher there is 2 journey. After ATR journey is completed, when it retraces, we can again buy. Okay, sir. Projecting the ATR journey will extend, but this is the trade-off greater than WDP buying, because those who are trading reversal buy sell, they are expecting 5%, if not in this week, in coming days. Okay. So you can at least expect in this week that after retracement, journey will extend. Okay. So if we get support in lower time frame after retracement, we should buy. That is this is what is the difference. Whenever ATR journey completes, retraces in low time frame trades with support, we should buy. This is the rule. This is the trading discipline. This is the execution strategy for ATR journey. But according to support used to buy greater than WDP is already even otherwise is buying. Hello. According to support used to buy greater than WDP, low time frame, it is already in buying. Yes, sir. So here Since in this case, retraces, we need not wait for the support in low time frame, because in low time frame it is already trading buying. Okay, sir. So in this case, for example, अभी
Can you go to the left side tab, the daily record sheet summary? इसमें सर अगर 19 के बाद कल अगर रेजिस्टेंस से चलता है, still we should keep on holding till we don't get 5%, 4 or Yes. 5%, Yes. with the stop loss of the whichever is the stop loss for stop and US to buy. See, if you are trading, reversal by sell traders are there. I repeat again, on 19th November, today, buying has come, right? So Right, in sir. occurrence, positional traders, passive traders, in occurrence period, whatever buying is there, they will square off. And tomorrow, they will wait to buy on retracement. Buy on Retracement. retracement. Okay. But this view will be good. This view will be valid until 221.35. Support is not traded on lower side. Okay. So sir, just one query. So like अभी 221.35 से if we consider, तो 235.40 अभी आया नहीं है टारगेट, बट अगर 4 और 5% दे देता वो आज के दिन में ही, तो अगर 238 का भाव देता समझो फॉर एग्जांपल, तो वो 4% हो जाता इन द सेम डे ओनली, सो देन वो ट्रेड खत्म. Yes, once from occurrence price 5% is given, in market there is trade is not come. For Correct. we are booking the profit. Targets are achieved. It doesn't mean that it will not go further. Profit booking level or target levels or journey level doesn't mean that it will stop rising and start falling. It only suggests book the profits. We have opted to book the profits. Okay, sir, understood. Sir, so one more query here. Can you open the chart for the 19th November plan? In this stop loss, since it has traded the next climbing bar also, my stop loss would still remain 221.35. Or would it change? Lost your voice. So I feel it should be 221.35. See, if you are trading post-opening trade setup pages here, stop and use above WDP, we have bought and journey is completed according to weekly time frame trader. And yes, now we should wait for the retracement, and we can buy on retracement nearer to the RC 100%, TVHS 230.60. Okay. This is the strategy for weekly time frame trader. And if we are trading independently, free from weekly post-opening trade setup pages, reversal buy sell traders, for them the buying view is intact until it is trading above 221.35, and they will buy on retracement. And retracement usually comes up to low for WDP in coming days, not today, tomorrow. Okay. ठीक है ना? आप एक काम करो, मेरे ख्याल से दो स्ट्रेटेजी साथ में समझा रहा हूँ, तो ना मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ना आप समझ रहे हो. So let us stick to these post-opening trade setup pages. Rest of from the stop and use to buy above WDP as per reversal buy sell trader, how they will be doing. I have tried to explain 2 times, but मुझे ऐसी feel आ रही है कि I'm not able to explain. हाँ सर, थोड़ा confusion हो रहा है. तो करेंगे. आप यहाँ पे इसको छोड़ दो. Jindal Steel, come back to our post-opening trade setup pages. In Jindal Steel, stop and use to buy above WDP is there.
Yes, sir, it is there. You suggest buying. Yes, sir. Buy on retracement. We would have bought today, and today itself journey is completed. 8-year journey. Yes, sir, it is completed. So square off, and now reinitiate buying when available or nearer to after retracement when lower time frame trades with support buy. So 8-year journey will extend. Let us keep it simple. Okay, sir. Whenever 8-year Sir, journey completes, and if you want to trade again, condition 1 it should retrace. Condition 2 later on, anytime later, it should trade with support in lower time frame. ठीक है? ठीक है सर. Then सर 8-year इसमें journey. एक चीज, ये WDP के बाजू में कोई कोई जगह पे ये ब्लू सिंबल आता है, कोई कोई जगह पे नहीं आता. This So hand is that symbol, hand symbol? suggests that it is not traded with fresh support and stop and used to buy or stop and used to sell has occurred. RMSL lower open, Okay. it could not trade with fresh resistance and stop and used to buy has occurred. Without trading with fresh Okay. support or resistance, when stop and used to buy occurs, it is a hand symbol. Okay. And So this like suggests wait for retracement. okay, wait for retracement. ठीक है. So सर यहाँ पे And मिनिमम this also मिनिमम में suggests बाइंग. This also suggests whenever fresh resistance in FC and stop and used to buy is there, no, you'll have very good tradable distance. Because fresh resistance in FC means prices have declined Yes, sir, declined. and then stop and used to buy occurs means there will be very good tradable distance. But ये fresh resistance दिए बगैर ही stop and used to buy हुआ है तो retrace होगा 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 तो ही buy करेंगे. That is what this hand symbol suggests. ठीक है सर. तो मतलब हैंड सिंबल कहीं पे भी आया, सो we should not buy, we should wait for retracement. Yes. Okay, sir. So got that query solved. Or should I move to my next query? Hmm. So this is like sir, a general observation. Okay, whenever stop and used to buy occurs, the the tradable distance, like on both the sides, even like the targets, the tradable distance is very far, and also the stop loss is very far. मतलब दोनों जगह the numbers are very far, and at many times both are in the different channels. Like climbing by is in RC, so stop loss would be in FC. So at that point, should we wait for another climbing by to trade? This is the reason. Just now we have repeated. I'll explain again. Whenever stop and used to buy occurs below FC 38.2%, say stop and used to buy occurs with FC 100%, FC 1.8%, and that stop and used to buy is above WDP and it is filtering also, then we buy immediately. But whenever Okay. used to buy occurs above FC 38.2 from anywhere, then Okay. we should wait for the retracement and it will retrace. Okay. Okay? And then only we buy. Yes. Okay, sir. Understood. So I go to someone else. Oh, sir, one more small query, sir. So you had you had suggested that in the initial stages we should trade only buy only in ICFC and sell when it's ICRC. So is it time now that we look at all other trade setups also, or should we still wait? There is 3 scenarios in ICFC in falling channel, not ICFC. In falling channel, there are 3 scenarios. Yes, sir. Rising channel, there is 2 scenarios. While buying in FC,
these three scenarios: ICFC active support, re-entry into RC, or you begin to buy. And this we have been talking: fresh resistance in FC and stop and to buy in FC above WDP. Yes, sir. Now, Jindal Steel, which we discussed, there was no fresh resistance in FC. So whenever there is no fresh resistance in FC, hand symbol will come and wait for the Okay. retracement in buy. This is three scenarios in FC. Why I'm insisting for these scenarios to buy only in FC means this is correction cell completed and original uptrend begins. This is retraced and then going up. And whenever टूट के बढ़ता है, then probability of stop loss hitting is very less and target usually achieves. And why I'm insisting for this, psychologically I'm preparing beginners, freshers, everyone for one trading psychology which helps us in positional trading as well as in passive trading. And that psychology is this: buy only on retracement, buy only when correction occurs, because positional trading, passive trading, usually 8 times, 9 times out of 10 times, it usually retraces. Correction cell occurs. Okay. प्रिपेयर हो जाते हैं कि रिट्रेस हो तो ही बाइंग करना है, करेक्शन सेल हो तो बाइंग करना है। वो एक माइंडसेट बन जाता है एक्टिव शिक्षा सीखते सीखते, और ये माइंडसेट पोजिशनल ट्रेडर का डायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। सो व्हेन वी आर डूइंग एक्टिव शिक्षा, वी आर गेटिंग गुड स्ट्राइक रेट आल्सो इन एक्टिव शिक्षा, एंड देन वी मूव टू पोजिशनल शिक्षा। हमारा एक टेम्परामेंट जो है वो सेट हो जाता है कि जल्दबाजी में कुछ भी बाइंग नहीं करना है, जल्दबाजी में कुछ भी सेलिंग नहीं करना है। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग सेलिंग के लिए। एंड सेकंड बात, सेकंड साइकोलॉजी इज, जो टूट के बढ़ता है ना, जो रिट्रेस होके बढ़ता है ना, जो करेक्शन होके बढ़ता है ना, उसकी जर्नी जो है वो काफी लॉन्ग भी होती है और सस्टेनेबल जर्नी भी होती है। जो सीधा Yes, सीधा sir. बढ़ता है बिना रिट्रेस किए, बिना करेक्शन सेल हुए, वो 50% ऑफ द टाइम, 10 में से 5 ट्रेड ऐसे होंगे कि जो जर्नी जो है वो फेड हो जाएगी, आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, और बहुत बार स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो जाता है। और एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर हम सबकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी बहुत लिमिटेड है, तो वी शुड ऑलवेज प्रीफर टू ट्रेड ओनली दो स्क्रिप्ट्स जो टूट के बढ़ रहा है, जो रिट्रेस होके बढ़ रहा है, करेक्शन सेल होके बढ़ रहा है, which is safe also, easy also, effective also, and हमारा जो चालू बाजार में हाईवे रहती है कि फटाफट बाई करो, फटाफट सेल कर लो, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। उस टेम्परामेंट के ऊपर हम उसमें से धीरे धीरे आप लोगों को रियलाइज नहीं होता है, लेकिन आप अगर रियलाइज करो तो जितने भी पार्टिसिपेंट शिक्षा में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग मेंटली स्टेबल तो हो ही जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट कमाई। हड़बड़ी में जो बाइंग सेलिंग करते थे, तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से ट्रेड करते थे, जल्दबाजी में सौदा लेते थे और फिर स्ट्रेस होता था, उस सब में से तो हम इमीडिएटली बाहर निकल जाते हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि हम रिट्रेसमेंट में बाइंग करना सीख रहे हैं। एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसकी ये है कि जब हम रिट्रेसमेंट में, करेक्शन सेल में होने के बाद हम जब बाइंग करते हैं तो टारगेट भी है ना, एक तो आते हैं और स्मूथली आते हैं। टारगेट आना एक अलग बात है, टारगेट आता है, स्मूथली आता है, क्विकली आता है।
उसके बाद में बहुत राह देखने की जरूरत नहीं है, और वो रैली भी सस्टेन होती है, चाहे वो एक्टिव शिक्षा हो या पोजिशनल शिक्षा हो। समझ रहे हो? इतने सारे हाँ बहुत सारे रिट्रेसमेंट के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख सकता हूँ। I cannot stop myself. And retracement is the key in शिक्षा सिस्टम। बस इतना समझ लो। दिस इज द रीजन मैं सिर्फ और सिर्फ कहता रहता हूँ कि फॉलोइंग चैनल में पहले बाइंग करना सीख जाओ। फॉलोइंग चैनल, और इसमें क्राउड साइकोलॉजी ये भी है कि जब आईसीएफसी ओपन होता है बाइंग के सेटअप में, तो क्राउड सेल करता है कि माइनस खुला, रेड खुला, टूट के खुला, तो वहां पे सेलर्स बहुत है और हमारे पास बाइंग है। री एंट्री इंटू आरसीबी होती है तो टूट के बढ़ा, क्योंकि टूटने में जो बिग हेड से वो एक्यूमुलेशन करते हैं, क्राउड जो है वो शॉर्ट सेलिंग करता है या तो डर के निकल जाता है। ये जब फ्रेश रजिस्टर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इतनी फास्ट आती है क्राउड की, ये बेचारे पहले तो शॉर्ट किए ही जाते हैं। जब स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होता है तो वो लोग शॉर्ट ऐड करते हैं। शॉर्ट क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। और जब वो अपर बैंड के पास आता है ना, तो वो अपर बैंड इज द लेवल कि जहाँ पे क्राउड साइकोलॉजी जो है, फ्रेश बायर्स आते हैं। जहाँ पे बाजार बढ़ना बंद होना है, वहां पे फ्रेश बाइंग आती है, और शॉर्ट सेलर्स जो है वो अपनी शॉर्ट जो है कवर करते हैं, और वहीं पे हम बाइंग की पोजीशन क्या करते हैं? स्क्योर ऑफ करते हैं। माफ करते हैं। ठीक है ना? मुझे ये सब जो है, ये सिर्फ मैंने कह दिया, आप समझोगे दो तरीके से। एक, एक्सपीरियंस करोगे, और दूसरा, एक्सपीरियंस करते समय ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी का जो बिहेवियर है, उस नजर से अगर आप देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। सिर्फ स्टॉप एंड बाई अबाउट डब्ल्यूटीपी हुआ तो चलो यहाँ बाई कर ले, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाई कर ले। तो मैंने बहुत पहले भी कहा था, देयर इज टू वे ऑफ लर्निंग। वन इज हाउ टू बाई सेल, सेकंड इज हाउ टू बाई सेल एज वेल एज वाई टू बाई सेल। और जो वाई टू बाई सेल सीख लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, कन्विक्शन लेवल, और बाजार में कभी भी डिफरेंट मूव्स आते हैं, सडनली मार्केट समटाइम्स सरप्राइजेस अस, तो वी नो हाउ टू हैंडल दैट। जो हाउ टू बाई सेल सीखा हुआ है ना, वो घबरा जाएगा। थोड़ा रिट्रेस भी होगा ना, अपने भाव से अनफेवर भी होगा ना, तो भी घबरा जाएगा। ट्रेडिंग पर्सनल साइकोलॉजी तो सिखाना बंद कर दिया मैंने। मार्केट साइकोलॉजी भी बहुत कम, जीरो पे आ गया हूँ, 1% भी नहीं है रेगुलर कोर्स में। क्राउड साइकोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, पर्सनल साइकोलॉजी भी नहीं समझा रहा हूँ, बट ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, ये तो सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बट 60+ पार्टिसिपेंट है, 60% प्लस पार्टिसिपेंट्स जो है, शायद 70% प्लस पार्टिसिपेंट्स जो है, दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स विथ हाउ टू बाय, हाउ टू सेल। और 20-30%, 40% पार्टिसिपेंट ऐसे भी है कि जो रीजनिंग में जाते हैं, लॉजिक में जाते हैं, वाई टू बाई, वाई टू सेल, एंड दैट इज नथिंग बट रीजनिंग कहो, लॉजिक कहो, वाई टू बाई, वाई टू सेल कहो, इट इज ऑल नथिंग बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये है क्या। और आरसी में हम क्यों इमीडिएटली अवॉइड करते हैं? जो हम ओपनिंग ट्रेड्स ले सकते हैं मंडे को, आईसीआरसी ओपन हुआ, प्रोजेक्टिंग आरएमएसएल हायर, यू कैन बाय। बट आईसीआरसी और हायर एक ऐसा ट्रेड है कि यहाँ पे हमेशा कंपलसरी रिट्रेसमेंट चाहिए चाहिए चाहिए। अगर बिना रिट्रेस बाय किया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। और सर ऐसे में टारगेट आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो भी रुला रुला के आएंगे, इट विल नॉट कम क्विक। ठीक है सर, तो एट दिस पॉइंट विल बाय ओनली एन एफसी। 3 months अगर मेरी मानो तो ओनली एफसी in these 3 trades only. Stop and used to buy above WDP is also टूट के बढ़ा। सर सो इन 3 ट्रेड्स में से सर फ्रैंकली सर अब सेकंड 2A जो है ना, आईसीआईसी री एंट्री इनटू आरसी, सर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि उसमें सर ट्रेडेबल डिस्टेंस मिलता है नहीं है, हार्डली सर ट्रेडेबल डिस्टेंस। री एंट्री इनटू आरसी हुआ, फिर एफसी 14 के पास आया तो बाई करो।
और री एंट्री इंटू आरसी को फॉलो करोगे तो री एंट्री इंटू आरसी के बाद में हमारे पास एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड है जो ओके 5%, 10% का है। ओके, तो अभी से फॉलो करते हैं। व्हेनेवर यू फील अप्रोप्रिएट आपको दे देना तो हमें। तो पोस्ट क्लोजिंग टोन का जो ट्रेड है री एंट्री इंटू आरसी का वो ले पाएंगे। करेक्ट सर, तो फिर आई फॉलो दिस एट दिस पॉइंट, आईसीआईसीआई एंड री एंट्री इनटू आरसी। करना ही है। री बिगिन टू बाई तो कितना मक्खन के जैसे आरसी 38.2 टीवीएलएस आता है, क्विकली आता है। ये तीनों ट्रेड जो है वो क्विक टारगेट्स आते हैं। यस सर, री बिगिन टू बाय में आते हैं सर। करो। सर मूविंग टू नेक्स्ट हम्म सर, मतलब ये वीक में कोफोज वीकली टाइम फ्रेम में सेटअप में था। सो सर वो खाली एक इट मेरा मिस हो गया बिकॉज सर वो फ्लैश सपोर्ट के साथ क्लोज नहीं हुआ, सो आई लेफ्ट दैट इट, मतलब लेके मैंने डे एंड पे स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड फिर नेक्स्ट डे टारगेट्स आ गया उसका, मतलब नेक्स्ट डे कौन सी ऊपर ही खुला। कोफोज, कौन सी स्क्रिप्ट? कोफोज, COFORGE। वीकली में है, बाइंग में। हाँ सर, वीकली में बाइंग में है। क्या बोल रहे हो इसमें, कैसे किया आपने? इसमें सर 17 डे एंड को सर ये हो गया था मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। सो हम्म 18 को सर सपोर्ट मिला जब डेली टाइम फ्रेम में, तब मैंने सर बाय किया था। हम्म बट सर फ्रेश सपोर्ट का क्लोज नहीं आया उसका, तो आई स्क्वायर्ड ऑफ एट एंड ऑफ डे। बराबर है। डाउन ट्रेंड का प्लान है तो अपर में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक किया। फिर सर नेक्स्ट डे टारगेट सुबह ही आ गया, मॉर्निंग में ही RMSL जैसे ही हाई बजट था। टारगेट आ गया। ठीक है ना, टारगेट आ गया। मेंटेन। नो प्रॉब्लम। अपने को ये डिसिप्लिन मेंटेन करनी है कि डाउन ट्रेंड का प्लान हो, खास करके डाउन ट्रेंड का प्लान था तो अपर में ट्रेड करे कोई बाइंग कर होल्ड करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है सर, सो वो सर ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ट्रेड बराबर था ना। हाँ, ट्रेड बराबर था। वो सब हम जब ठीक है। पोजीशन में जाएंगे ना तो उसको होल्ड करना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। लेट मी सी पोजीशन क्या था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बराबर है ट्रेड। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेरे सब क्वेरीज हो गए। थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ, अमन बोलो। सर HDFC बैंक पे चलते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे। HDFC बैंक। हाँ जी, HDFC बैंक डेली टाइम फ्रेम, वो जो आपने जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दिया था कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम वगैरह, तो उसके ऊपर मैंने कुछ 2-3 महीने के लिए कुछ स्टेप्स में करी, तो मैंने कहा एक बार मैं देख लूं कि मैं सही कर रहा हूँ और क्या क्या डाउट्स हैं वो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। सर 6 जनवरी में 2020। हाँ जी 6 जनवरी 2020। तो सर यहाँ पे इसका टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड लिखा हुआ है, तो यानी कि ये पूरा कंप्लीट बियर हाउस में है, करेक्ट? मैं मतलब छोटे छोटे सवाल पूछ जाऊंगा, बस आप बताते रहना सर, सही सोचा गलत सोचा व्हाटएवर। बराबर है। फिर सर अब ये फर्दर फॉल करेगा अगर ये 1225 के नीचे गिरेगा, और बराबर। राइज करेगा अगर ये 1288 के ऊपर जाएगा। 1288 इसलिए क्योंकि नियरेस्ट हाई को मैं देख रहा हूँ, बराबर है। रीसेंट हाई। मतलब इट विल सही। कंटिन्यू टू फॉल फर्दर इफ इट ट्रेड्स नीचे, और अगर इट विल राइज
it will rise from here if it trades about 1288, करेक्ट? बराबर है। ठीक है, फिर सर 7 जनवरी में स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो आया है वो आया है 1254 पे इसी डेट में। सर 7 जनवरी मतलब नेक्स्ट डेट पे। हाँ, अब क्या हुआ होगा सर, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल 1254 पे आया और स्टॉप लॉस हमारा 1277 रहा होगा। मतलब मैं एक पेपर पे लिखने की कोशिश कर रहा था, और जो 8 जनवरी आया सो आइडली स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय आ गया, तो यानी कि हमारा पिछले दिन का ट्रेड एग्जिट हो गया होगा। नहीं, ये गलत वे ऑफ स्टडी है। ओके, पीसीआर एक अलग ही है कि जहाँ पे आपने कहा फर्स्ट पार्ट कि भाई जब भी कोई अकरेंस अकर होता है, जैसे टर्न अराउंड हाँ। कंप्लीट अराउंड दोनों अकर हुआ, तो अकरेंस हाँ। पीरियड में होते ही वहां पे हमको अगर कोई सेलिंग भी है तो स्टोर करनी है। प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग but it will continue to decline further when 1225.60 trends on lower side. Otherwise, it will have a bounce back, pull back अच्छा, till 1261, 1284, 1250 तीनों में हाईएस्ट है 1284.60, तो वहां पे एक बार बाउंस बैक आएगा। ये आपने सही किया, लेकिन ये जब स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हम इसमें क्लब करते हैं तो हाँ इसको जी। हम कभी नहीं किया है सो फार। स्टॉप एंड यूज टू Okay. बाय सेल के लिए हमारे पास एक एक्सटेंडेड नेक्स्ट लेवल का वर्जन है विच इज नोन एज रिवर्सल बाय सेल, लेकिन एक बार समझ गया, मतलब इन दोनों को क्लब नहीं करना। नहीं करना है। स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हम इसलिए सीख रहे हैं कि मैंने कहा था शुरू में भी कि इसकी 7 लेवल है। अगर हम हाँ स्टॉप जी, हाँ एंड जी। यूज टू बाय तो कहते हैं कि जिसे हम धीरे धीरे you know the occurrence period valid sell and stop and use to buy, occurrence period valid buy and stop and use to sell, वो ट्रेड हम लेते हैं। देन वो टाइम फ्रेम में ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी जो भी हिंदाल फिल्म समझा रहा था वो हम ट्रेड लेते हाँ हैं। जी। देन स्लोली नो हम रिवर्सल बाइसेल पे जाते हैं। तो स्टॉप एंड यूज टू बाइसेल के जो सब स्टेजेस है वो क्लियर हम कर ले तो रिवर्सल बाइसेल हाईली फ्रूटफुल। तो Okay, ब्लेंड ठीक है, मत मैं उसको क्लब नहीं करता। गॉट इट। सर अब 1 फरवरी पे जाते हैं, इसमें 1 फरवरी। सर ये सिंस ऑलरेडी बियर के हाउस में था, तो 1 फरवरी में हमारे पास टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड चेंज क्यों हो गए? मतलब हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं 1 फरवरी? यहाँ पे टर्न अराउंड हम लिख रहे हैं ना कि दोबारा 1196 और 1196, ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो वैसे भी बियर के हाउस में ही है, तो अब ये फ्रेश क्यों लिखा आता है? क्योंकि बीच में लेटर आया था इसलिए? जब भी स्नेक आएगा हाँ जी। तो इमीडिएट प्रीवियस लेडर जो है फर्स्ट हाँ जी। पोजीशन लेडर का जो पीसीएस या पीसीडीएस है 1196.30 हाँ जी, हाँ जी, वो मैं समझ गया, क्योंकि उसका हम उसको टर्न अराउंड लेंगे, और जो प्रीवियस जितनी भी डार्क ग्रीन लेटर्स हैं उनका जो भी लोएस्ट होएगा। हाँ, तो वो जरूरी है ना कि यहाँ पे स्नेक की हमको जर्नी मालूम पड़े कि स्नेक जर्नी इज 1196.30 एंड इवन व्हेन 1196.30 इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हो भी जाता है, तो यहाँ पे एक बार के लिए जर्नी कंप्लीट हुई। ये स्नेक्स एंड लेडर पीसीएस पीसीआर जो है इसके पीछे वो साइकोलॉजी वही है, सिंपल साइकोलॉजी है जो हम बचपन में स्नेक्स एंड लेडर्स खेला करते थे। ओके। जर्नी कि स्नेक आते ही इसकी जर्नी फर्स्ट जर्नी इज 1196.30 और कंप्लीट आउट प्राइस बहुत बार और लोअर रहता है, तो यहाँ पे फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी दोनों 1196.30 है। एंड वंस 1196.30 लोअर से ट्रेड करते ही एक बार के लिए यहाँ पे जर्नी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके, तो सर अब जैसे 5 फरवरी को टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड, ये तो फिर ये सिग्निफाई कर रहा है विदाउट लेडर ये बुल के हाउस में चला गया, ऐसा? 5 फरवरी, हाँ, 5 फरवरी में सर लिखा है ना टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड विदाउट लेडर, हम ये कह सकते हैं कि ये बुल के घर में घुस गया? नहीं देखो 4 फरवरी को लेडर आई है,
थर्ड फरवरी को, हाँ 4 फरवरी को बनी है, बिल्कुल 3 फरवरी को, बिल्कुल 4 फरवरी को अकरेंस हुआ। नेक्स्ट डे टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हुआ है हाँ जी, और बुल के घर में घुस गया, ये लैंग्वेज हम तब यूज कर सकते हैं जस्ट टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड अकर हुआ है, राइट? नाउ प्राइसेस आर राइजिंग, then it will continue to rise further. बट सर सॉरी, मैं आपका सवाल समझ गया सर। वो तो 1258 के ऊपर जाएगा तो ही हम कहेंगे कंटिन्यू टू राइज हाँ। फर्दर है। हाँ, वो बुल के घर में घुस गया जो बात करते हैं उसके लिए है। अदरवाइज फॉर ट्रेडर्स 1230 के पास लेना है, उसको रिट्रेस करेगा। 1230 के आसपास लेना है। हाँ, पीसीएस है ना। अच्छा, मैं 4 फरवरी का 1216 देख रहा हूँ। ये रहा पीसीएस 1230.75। अच्छा नहीं, मैं 4 फरवरी का देख रहा था सर, 4 फरवरी का। 4 फरवरी को हम, हुआ। हाँ 5 फरवरी को। तो यानी कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये बुल के घर में आ गया, ये नहीं बोल सकते। ये जो लैंग्वेज है, पार्किंग हाँ ऑफ जी, फंड बोलते हैं, पैसिव ट्रेडिंग बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। कि बुल के घर में हाँ गया, जी, ऐसी लैंग्वेज हम तब यूज कर सकते हैं कि कंप्लीट टर्न अराउंड होने के बाद, जिस दिन कंप्लीट टर्न अराउंड अकर हुआ, उसका पीसीसी जो है वो हायर से ट्रेड करके पीसीएस से बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि 1257.30 जब हायर साइड पे बंद होएगा तो ही हम देखो ना, बोलेंगे कि वो बुल के घर में गया। यहाँ पे ट्रेडर्स के हिसाब से ये बैर के घर में गया, बट हम वी कैन नॉट यूज द लैंग्वेज। ये सेलिंग हुआ, ट्रेडिंग की सेलिंग है, बट बैर ऑपरेटर के लिए ये prices will continue to decline further only when 1225 trades on lower side, which it could not trade. यहाँ पे फिर से टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड दोबारा हुआ, जो भी आपने कहा, कहाँ पे हाईलाइट किया, सेकंड टाइम हुआ। 4 फरवरी। बट इसका, इस दिन का पीसीडीएस 1170.90, इट कुड नॉट ट्रेड फर्दर। आप देखो, जब भी स्नेक आता है तो फर्दर स्नेक कब चलेगा? एक बार स्नेक की जर्नी खत्म हो गई, उसके बाद में कोई और घर में वो नहीं जा सकता है until PCDS is not traded on lower side. ओके, मेरे को लगता है कि इसको कॉन्सेप्चुअली आराम से दोबारा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको जो देख रहा था टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड, तो मैं उसको, आप इतने एफर्ट्स करो, इसलिए मैं इसका, हम इसको डिस्कस किए जा रहे हैं। बट सही कहूँ तो पीसीएस पीसीआर जो है ना, मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया कि स्नेक्स ऑन लेडर्स फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हाँ वो आता है, हाँ जी। और सेकंड, ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हमारे पास जितने भी ट्रेड्स वीकली में बाइंग और सेलिंग आ रहे हैं, उसमें हाउ टू सिलेक्ट एंड हाउ टू रिजेक्ट द स्क्रिप्ट्स, इसके लिए हाँ हम जी, लेडर्स सीखे हैं। करेक्ट। बाकी स्नेक्स एंड लेडर्स, हाउ टू ट्रेड snakes and ladders, how to interpret snakes and ladders, what is the psychology of this, ये सब हमने कभी सीखा ही नहीं। आप खुद अपने आप सीख रहे हो, ठीक है जी। इसलिए मैं आपको आपकी क्वेरी सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। बट ये पीसीएस पीसीआर सिर्फ एक ही वेबिनार है जो हमने सीनियर पार्टिसिपेंट बहुत पहले दिया हुआ है, एंड उसमें उनको समझा दिया, एंड बिकॉज दे आर विद शिक्षा फॉर लॉन्ग, तो उनको समझ में भी आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीसीएस पीसीआर बेस्ड ट्रेड्स में 5 से 6 ट्रेड हैं जो हाँ जी, सिंगल लाइन में, सिंगल क्लिक में फिल्टर हो जावे। ये जो डबल स्टार देख रहे हो, इन आरसीएफसी देख रहे हो, ये एम्परसन साइन देख हाँ रहे जी। हैं, डबल स्टार देख रहे हैं, ग्रेटर देन है, ये सब में एक ट्रेड छिपा हुआ है 5-5% का। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। बट मैं ये अगर सीधा सिखाना चालू करूंगा ना, तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि भाई बहुत सारे एफर्ट्स करने वाले लोग हैं ना, वो सीख जाएंगे। बट जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं ना, दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस 5% ट्रेड्स। इसके लिए मैं लगातार, हम लोग पिछले पे एक रिपोर्ट बना रहे हैं, फ्रेम ट्रेड सेटअप बना रहे हैं, सिंगल लाइन सिंगल क्लिक का ट्रेड सेटअप बना रहे हैं, प्लस यहाँ पे हिस्टोरिकली एक और कॉलम आएगी, जो ट्रेड सेटअप बना वो 2018 से लेकर 2020 में कब कब अकर हुआ,
तो अपने को मालूम पड़ेगा कि ट्रेड्स कितने मिले और उसमें हाँ जी। प्रॉफिट कितनी बार हुआ, लॉस कितनी बार हुआ, वो हाथों हाथ हम हिस्टोरिकली बैक टेस्टिंग कैसे करना वो भी मैं आपको सिखा के मैं देना चाहता हूँ। दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम। बाकी दिस इज ये जो साइन वाला जो है, अगर ये सिखाना रहे तो इतना ब्यूटीफुल ट्रेड्स है इसमें सभी। लास्ट 3 महीने में 3 महीने से ज्यादा हो गया, इट इज अवेलेबल बिफोर यू जॉइन द कोर्स, इट इज अवेलेबल, बट आई एम नॉट शेयरिंग क्योंकि माइंडसेट बना दिया है सिंगल लाइन सिंगल पेज में ट्रेड बनाना और रेडीमेड फ्रेम करके देना। सेविंग ट्रेड से जितने भी स्टार सीना सी जो भी लिखा हुआ है ना, सब में 5% के ट्रेड। ओके ओके तो ये वीकली में जाएंगे तो 10% के ट्रेड है। आई एम जस्ट आंसरिंग यू। मैंने आपको जितने भी, इसीलिए होता क्या मालूम है, जो मैंने नहीं सिखाया है ना, तो बाकी लोगों ने उनको लगता है कि टीचर ऊपर से आ रहा है, और आपने प्रैक्टिस किया है, आपको स्किल आ रही है। जस्ट आंसरिंग योर क्वेरी, आप रुक जाओ इंडिपेंडेंटली सिनेरियोस के साथ, ट्रेड्स के साथ हम सीखेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। हम्म? हाँ जी। Anyone else? वीकली में जाएंगे तो यही सब ट्रेड 10-10% के हो जाते हैं, 10-10%। हाँ प्रदीप बोलो। हाँ सर, पावर ग्रिड it's not to buy greater than WTP daily. पावर ग्रिड It's not to buy greater than WTP 17th March to one. Sorry. योर सेल बाय सेल, It's not to buy greater than WTP. वही योर सेल बाय हुआ ना। हाँ, रिवर्स से बाई का ही है। हाँ, तो ये कल का ट्रेड था। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं ये जस्ट चेक करना था। कौन सा ट्रेड है? स्टॉप लॉस टू बाय अबाउट WDP। हाँ, ग्रेटर देन WTP। 13 नवंबर का। हाँ, 13 नवंबर का। हाँ ठीक है। तो उसके बाद 187.75, sorry, 185.35 is the support. वॉइस उसके ब्रेक हो रहा है। हाँ 185.35। हाँ is the support. It's not to buy support. हेलो, क्या हाँ हाँ, बोलो। तो उसका हाँ हाँ ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, इज इट सर? जी 18th को yesterday कैसे हिट हुआ? 185.35 है राइट? हाँ, आर यू देयर? yes sir, प्रदीप? yes sir, I'm there. Yes sir, I'm here. जैसे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ, हाँ, वहीं पे हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? स्कोर ऑफ होनी चाहिए। या तो फिर 185.35 का नेक्स्ट हाँ लेवल क्या है? 185.35 फॉल्स हियर सर, स्क्रीन in स्टक हो between गया वैसे। 8.2 हाँ, and 61.8. यस, Then what should be my stop loss? इस हिसाब से तो FC 100% होना चाहिए। इस हिसाब से नहीं यार, जो हिसाब है वही हिसाब बोलो, अपने को रूल्स चेंज हाँ, नहीं करने मतलब हैं। FC 100%। 185.35 falls in between FC 38.2 and FC 61.8
if I am Yes. holding any buying position, what should be my stop loss? FC 100% ये 5% ट्रेड के लिए 5% ट्रेड के लिए my stop loss should be FC 100%. यस तो यहाँ पे समझ में क्या फर्क है कि हमको ऐसा लगा और शायद आपने लिया होगा तो स्क्वेयर ऑफ भी कर लिया होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हाँ। बोल के स्टॉप लॉस समझते हो आप? कैसे स्टॉप लॉस समझते हो? 185.35 व्हेन यू कंसीडर इट एज ट्रेडेड, और ये 185 यस और ट्रेड है 5% का। अगर 5% की हमको लेना है और हमको रिवर्सल बायसेल के कॉन्सेप्ट पे भरोसा है तो वे अल्टीमेटली वो जितना ही है। तो ये तो 185.35 अगर FC 38.2 और FC 61.8 के बीच में नहीं भी आता रहता ना, इन बिटवीन, तो भी पोजिशनल ट्रेडर को, पैसिव ट्रेडर को उसका मिनिमम स्टॉप लॉस ये है ना, FC 100% ही होना चाहिए। ये 38.2 61.8 ये सब स्टॉप लॉस होने ही नहीं चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर को तो ये पूरा जो RC 61.8 से FC 61.8 का जो लेवल्स है ना वो निकाल देने चाहिए। हाँ सर ठीक है, अगर 185.35 FC 38.2 के ऊपर होता क्योंकि 3 रुपया 40 तो पैसा है। भी देखो ये तो ठीक है कि भाई 185.35 यहाँ पे ये वर्क कर गया और 100% स्टॉप लॉस आ गया, बट समटाइम्स ये 35 नहीं होता और 60 होता, 30-40 पैसा। तो 35 FC 38.2 ट्रेड करते ही स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। 3 रुपया 40 पैसे की रेंज में 5% का हमको ट्रेड लेना है तो वी शुड बाय डिफॉल्ट, चाहे यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस FC 100% ही होना चाहिए। ओके बराबर ना? यस सर, ये डेली टाइम फ्रेम सो के लिए। वी शुड इग्नोर वीकली भी करते हो, वीकली में FC 100% मत रखना बाय डिफॉल्ट। वीकली में जो हम सीखे जैसे ओके सीखे वहाँ पे क्या रखना है तो रहेगा ओके ओनली। इससे Okay. एक और फायदा है प्रदीप कि मुझे है ना बाजार देखने की जरूरत ही नहीं है, भाव देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक दिन पहले ही मालूम है कि FC 100% क्या है, शाम को ही मालूम है, ऐसा ना? फिर पावर ग्रिड को अब देखना ही क्यों, यस बाजार जाना ही क्यों, पावर ग्रिड का भाव पूछना ही क्यों? अलर्ट डाल के रखो, किसी को बोल के रखो, या तो 10 शेयर बेचने में डाल दो 183 में, और जब बिकेगा तो ब्रोकर जो है वो आपको बोलेगा टर्मिनल पे मत बेचो, ऑनलाइन मत बेचो, ऑफलाइन फोन करके किसी ब्रोकर को बोलो कि 183 में 50 सेंट बेच दे। जब फोन आएगा तो समझ लेना कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जब तक फोन नहीं आता है तब तक भाव ही मत देखो, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग होगी। दूसरा, समझ लो RMS लोअर ओपन हुआ और वो भी FC 100% नीचे बहुत कम ओपन होता है बाजार, अगर वो हुआ तो मेरा नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस चेंज हो सकता है ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल इफ इट इज बिलो FC 100%। यस और नो? यस प्लीज ट्रेन योर माइंड दिस वे कि भाई FC 100% ही रखे और एक दिन पहले ही रखें। और आपके पास रिवर्सल बायसेल का 2018 से कॉलम है और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करते हो, अच्छा होमवर्क भी करते हो, तो इस तरह से आप देखो कि मैं अगर 100% का स्टॉप लॉस डाल के बैठा रहता और साथ साथ में अपने माइंड को ऑटो सजेशन दो कि मैं बाजार जाता ही नहीं, बाजार देखता ही नहीं, और एक दिन शाम को पहले ही मालूम है कि FC 100% का स्टॉप लॉस क्या है, ये डाल के अगर मैं छोड़ देता उसको तो क्या होता है? पैसिव का मतलब क्या होता है? आलसी बन जाना। आलसी ही कमाता है पैसिव ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है ना? बोलो नेक्स्ट So, क्वेरी। sir, SNF to sell. So, SNF to sell less than BDP, we should ignore. I mean, that should not be a stop loss. देखो अगर आपका सामने ही स्टॉप लॉस है एंड वहीं पे स्टॉप लॉस बिल्कुल। बिलो बीटीपी है, तो हाँ। अगर आप स्ट्रेटेजी बना लोगे, अपने आप को फ्रेम कर लोगे, तो वी शुड एग्जिट ऑल द टाइम व्हेनेवर लेस देन बीटीपी हुआ है। पर आप देखो लेस देन बीटीपी होते ही सामने सपोर्ट के पास ही हुआ है तो वी शुड इग्नोर। नो, इतना तो सोचना पड़ेगा ना पोजिशनल ट्रेडर को
हम्म, समझ लो स्टॉप लॉस टू सेल बिलो बीडीपी कल होता है 195 में, 200 में, और मेरा 185 का स्टॉप लॉस है, तो आई कैन नॉट होल्ड नो स्टॉप लॉस टू सेल बिलो बीडीपी, एंड आई कैन नॉट होल्ड द स्टॉप विथ स्टॉप लॉस ऑफ 185, but stop loss to sell below बीडीपी हुआ और सामने ही 185 खड़ा है, तो what should I do? I'm trading this or I'm trading this? 185। Yes, and I'm trading reversal buy sell concept, no, according to that तो buying ही है ना। बिल्कुल। ये सब स्क्रीन फ्री करोगे ना तो प्रदीप समझ में आएगा। बाकी हम वो लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, फ्रेश रेजिस्टेंस मिल गया, टूट गया, बेच दो, ऐसा सब होगा तो वो आपने लोअर बैंड ट्रेड करते ही बेच दिया होगा। यस और नो? बिल्कुल सर। ये सर। तो फिर ये 185 35 का मतलब क्या रहा? हम्म, जब हम बाइंग करते तब हम अपने आप को कहते हैं कि 185 35 इज माय स्टॉप लॉस, हम्म, और जब हम बाजार में जाते हैं वो प्लान देखते रहते हैं, प्लान भी नहीं देखते हैं, बाजार को देखते रहते हैं, तो लोअर बैंड ट्रेड करते ही हाथ में पोजीशन रहती है ना, तो उसका माइंडसेट क्या रहता है मालूम है? कब निकलूं, कब निकलूं, कब निकलूं। हम ऊपर का टारगेट देखते ही नहीं कि यार ये 185 35 यहाँ से हुआ है तो जब तक 185 35 लोगों से ट्रेड नहीं करता है तो 191 तो आएगा, ऐसा अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप के साथ लिखना पड़ेगा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हर स्क्रिप्ट के लिए आपका व्यू आप खुद वहां पे लिख सको, और एक बार अगर हमने लिख लिया कि above 185 35 until it is holding above 185 35 it will trade 191 30। यस और नो? सिंपल है ना? या तो ये 185 तोड़ेगा यस या पीसीसीबी तोड़ेगा, कहाँ बिल्कुल जाएगा? और बिल्कुल 191 30 देखते ही यहाँ पे नजर आता है कि भाई हाई 19 रिसेंट हाई भी 191 है, तो वो भी ट्रेड कर लेगा, यस तो वहां से और बिल्कुल 5% देगा। बाइंग करते करते अगर रिसेंट हाई ट्रेड करता है तो उसको है ना, वो एकदम नशे में आ जाता है, सीधा 5% उसी दिन फटफट पर दे देता है। हम्म। तो ऐसा सोचा था क्या? मैं ये सब पूछ रहा हूँ जिस दिन 13 नहीं सर। नवंबर को, तो ऐसा सोचने के लिए सिखाया कि यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, हम्म सर यही या तो ट्रेडिंग रिसेंट हाई तक साइकोलॉजी है। देखा, उसके आगे का ट्रेड लेने के लिए सोचा नहीं अभी तक, तो रिसेंट हाई तक मैं ट्रेड लेता था। अगर ये रिट्रेस होके टूट बढ़ता है तो पीसीसीबी ट्रेड कर लेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऐसे मान के तो लेना करेगा है। तो रिसेंट भी ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मैं सिर्फ एक ही बात जो अभी फ्रेशर्स थे उनको भी यही समझा रहा था कि आईसीएफसी में री एंट्री इनटू आरसी में, री बिगिन टू बाई में, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाई में, ये सब बाइंग करवा करवा के आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही ट्रेन कर रहा हूँ कि जो रिट्रेस होके बढ़ता है ना वो टिकता है, वो सस्टेन होता है। अब क्या बोलूं मैं आपको, आप तो बहुत साथ साथ कितने टाइम से साथ में हो। हाँ सर, ये दिस इज ट्रू, बट पॉइंट ये है कि जब भी रिसेंट हाई सामने दिखता है 13 नवंबर को प्रदीप अगर हमने ये बात कर ली होती पावर ग्रिड से, या तो हमने लिख लिया रहता, या तो अपने आप को एक ऑटो सजेशन दे दिया रहता कि ये 185 35 के ऊपर है ना बाइंग है, और 191 30 आएगा, और 185 35 दूसरी बात 185 35 तक आकर रिट्रेस होकर वो बढ़ता है तो पीसीसीबी 191 ट्रेड कर लेगा। तीसरी बात, बिना रिट्रेस किए अगर वो 191 आएगा तो वो वैसे भी सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि रिसेंट हाई सामने है। ओनली 3 सेंटेंस ही है जो अपने आप को कहना है बस। वो कहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं हाँ होगा। मतलब बहुत फिर भी रिसेंट हाई पे जाके, रिसेंट हाई में जाके फिर भी बहुत इजी है। हेलो प्रदीप, 5 आपको मिनट हाइलो लिखने को बोल रहा हूँ क्या?
रेंज और डायरेक्ट पैटर्न लिखने को बोल रहा हूँ क्या? नो सपोर्ट इस ब्लॉक लिखने को बोल रहा हूँ क्या? पीसीएस पीसीएल लिखने को बोल रहा हूँ क्या? हम लोग सब ऐसे ही तो बल्ले पड़े हुए, वहीं से तो शुरुआत की, उस सब से तो बाहर निकल गए हैं ना। अभी जो जजमेंट वो तो लिखे 3 सेंटेंस में। ओके ठीक है, I'll do. लिखो ना, इसको बोलते हैं लव लेटर। ये लव लेटर लिखना पड़ेगा पावर ग्रिड के नाम पे। यस सर। ठीक सर है। ये क्लियर हुआ ये क्वेरी। सेकंड सर, इन इंफ्राटेल। इंफ्राटेल। हाँ अच्छा मुझे एक बात बोलो, ऐसे क्वेरी सॉल्व करते रहूंगा बट व्हाट क्या करूं मैं सर कि भाई व्हाट इज, मुझे जाननी है व्हाट इज द डिफिकल्टी इन कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ FC 100%? What is the difficulty in ignoring stop and use to buy support and lower band trade करते ही बेच देना? What is that? क्यों ऐसा होता है? सर शायद देखो सिस्टम में भी स्टॉप लॉस रहेंगे दो मिनिमम, सिस्टम के भी स्टॉप लॉस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ मतलब सिस्टम का ही तो स्टॉप लॉस है। रहेंगे कि बट नहीं रहेंगे? रहेंगे यस, बोलो ना, तो हाँ रहेगा ना। रहेंगे। यस यस। और दो इस तरह से मैं गलत समझ के स्टॉप लॉस में मैं निकल जाता हूँ, तो 40% तो ऐसे ही कर लिया। मुझे यस प्रैक्टिकल सर। डिफिकल्टी को समझानी पड़ेगी कि भाई इस समय क्या होता है कि भाई हम 185 35 का स्टॉप लॉस नहीं रख के लोअर बैंड का स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं? हाँ इनफैक्ट अगर ये 185 35 ट्रेड भी कर लेता लोअर बैंड के साथ भी, तो भी स्टॉप लॉस भी एक एक और बात बोलूं, यहाँ पे न्यू पीसीडी हैज कम 184.75 ऑन 17, यस। तो माय स्टॉप लॉस वुड शिफ्ट टू 184.75। क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल स्टॉप लॉस और यहाँ शिफ्ट हो। हाँ बाइंग और बाइंग के जजमेंट में इट इज कमिंग ओनली अप टू FC 100%, यस। and FC 100% is not trading नो बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ही है 184.75 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल। एंड हाउ एक्यूरेटली इट इज वर्किंग, क्योंकि नेक्स्ट डे यस वापस 184.75 ही आता है और वहीं से 197 आ रहा है। यस। तो ये हम दिस वुड हैव, मैं इतना टाइम वेबिनार में स्पेंड करता हूँ एक केस स्टडी समझाने के लिए, तो जब हम ट्रेड लेते हैं तो बी विथ एवरी डे नो एटलीस्ट एक बार पढ़ लो ना उसको, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल। यहाँ तक तो हम फॉर्मुलेट कर दिए, फ्रेम कर दिए, अब रिवर्सल बाय हुआ कि नहीं हुआ वो भी चेक नहीं करना है, उसका सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाय भी नहीं निकालना है, ये सब हम एक साल से मैन्युअली करते थे। कुछ करना ही नहीं है ना, सब कुछ रेडीमेड हो गया, स्क्रिप्ट भी फिल्टर हो गई, रिपोर्ट भी आ गए। अब इसको मैं कैसे बनाऊं कि भाई स्टॉप लॉस 184.75, पहले 185.35, फिर ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा ना। और ये भी सोचना चाहिए कि 191 से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए कि 186 185 185 ही क्यों आ रहा है, कुछ तो है यार इसमें, कुछ तो बात है 186 में, कुछ तो है। तो जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ऊपर कहीं इसका जवाब मिलेगा 186 का। ठीक है ना? तो यार संभल के करो। अच्छा नेक्स्ट बोलो, कौन सी स्क्रिप्ट में जाओ? सर इंफ्राटेल डेली SNF to sell greater than BDP। बाइंग। हाँ बाइंग। बाइंग हाँ बाइंग। कहाँ से आएगा, ये तो लैंडिंग से चल रहा है, बाइंग की स्क्रिप्ट में फिल्टर ही नहीं होगा। हाँ सर आया था लैंडिंग की सर, एक ऊपर जाइए। ओह सॉरी, मैं तो मेरा स्क्रीन देख रहा था। 16 जुलाई से ये लैंडिंग होके चल रहा है। ओके नो नो सर, अच्छा, लैंडिंग
उसमें बाइंग कर सकते हैं, बट लैंडिंग नहीं टिक किया था, लैंडिंग नहीं, लैंडिंग करो टिक या नहीं नहीं किया था। नहीं होगा। आप अब लैंडिंग टेक ऑफ, क्लिक नहीं करो, उस खुलेगा ही नहीं नीचे का नेक्स्ट। आप हाँ टेक ऑफ बट तो ये बाइंग इन एक्शन ही खुलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल ये नहीं, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ही बट क्या टेक आपके ऑफ, पास अवेलेबल? टेक ऑफ और लैंडिंग तो कंपलसरी है, बाय डिफॉल्ट आपको ये हाँ सिलेक्ट करना है। नहीं सर, टेक ऑफ मैंने टेक क्लिक ही ऑफ, नहीं किया था क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो माय डियर, टेक कम ऑफ अगर आपने क्लिक भी नहीं किया है तो वो इंफ्राटेल स्क्रिप्ट आएगी कहाँ से? अगर लैंडिंग करोगे तो सीधा डिक्लेयरिंग खुलता है, बाइंग में है ही नहीं है। नहीं सर, टेक ऑफ, ये टेक ऑफ भी टिक नहीं किया, लैंडिंग भी टिक नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे और ऐसे बीडीपी इंफ्राटेल उठाया। पीसीएस पीसीआर में लैडर में था। आपकी क्वेरी कहाँ से थी? स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी बोला ना आपने अभी, हाँ हाँ हाँ, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी कौन से कॉन्सेप्ट का है? अच्छा, ये उस टाइम पे लैडर भी नहीं था। प्लीज यार लेडर की बात नहीं करो, मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दो। स्टॉप एंड यूज टू हाँ सेल बोलता हूँ सर, आप, हाँ अबो बोलता हूँ, डब्ल्यूडीपी कौन सा ट्रेड सेटअप है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? अ, यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाके ग्रेटर देन बीडीपी मैंने किया था। प्लीज यार ना प्रदीप, मुझे है ना यार, मुझे कुछ जानना है। स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल अबो बीडीपी डब्ल्यूडीपी पीसीएस पीसीआर का सेटअप है या रिवर्सल बाय सेल का सेटअप है? स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल ग्रेटर देन बीडीपी। वॉइस ब्रेक हो रहा है सबका। स्टॉप एंड यूज टू स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल ग्रेटर देन बीडीपी। प्रदीप, हाँ हेलो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी कौन सा ट्रेड सेटअप है, कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर, मैं रिपोर्ट में जाके सिर्फ ग्रेटर देन बीडीपी में टिक किया था। मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट में जाऊंगा यार, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब हाँ नहीं दे रहे हो। मैंने 5 बार पूछ लिया आपको। स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी, स्टॉप एंड यूज हाँ, टू बाय अबो डब्ल्यूडीपी, ये पीसीएस पीसीआर की स्ट्रेटेजी है या रिवर्सल बाय सेल की स्ट्रेटेजी है? पीसीएस पीसीआर का, जी सर, ये मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट निकल के रखा था उस टाइम पे। नॉर्मली आई फर्स्ट चेक विथ टेक ऑफ एंड विथ पीसीएस, अगर इसमें नहीं मिलता है तो मैं एक एक करके फिल्टर कम करता हूँ। चलो मुझे बताओ कैसे निकाला? यहाँ पे टेक ऑफ हुआ, फिर क्या किया? सर टेक ऑफ में बहुत कम स्क्रिप्ट आ रहा था कल, तो टेक ऑफ मैंने निकाल दिया था। फर्स्ट मैं क्लिक करता हूँ समरी रिपोर्ट में जाके, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाके ग्रेटर देन बीडीपी। क्या बताओ ना, मैं अभी फिल्टर करता हूँ ना, कैसे फिल्टर हाँ करते हो तो मुझे बताओ। समरी रिपोर्ट में जाइए, टेक ऑफ से निकाल दीजिए पहले, ठीक। निकाल दिया, ओके। हाँ, समरी रिपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में जाके ग्रेटर देन बीडीपी, ग्रेटर देन बीडीपी। हाँ, हम्म तो फर्स्ट ये चेक करता हूँ कि इसमें कितने सारे स्क्रिप्ट आ रहे हैं। अगर ज्यादा है देन आई पुट अनदर मोर फिल्टर्स दैट आई विल कम। अगर पहले ये सर्च करते हैं, यहाँ पे 28, तो देन आई विल पुट पीसीएस फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे 28 रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। तो इसमें भी इंफ्राटेल किधर है? नीचे आइए, ये अल्फाबेटिकली मैंने सॉर्टिंग कर ली हाँ यार, कहाँ जाऊँ मैं? इंफ्राटेल किधर है यहाँ? तो मेरे पास आ रहा था इसलिए मैंने किया। नहीं नहीं नहीं, आएगा मैं यार। मेथड बोल देता हूँ, यहाँ पे जो है नहीं ना आएगा। प्रदीप, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हाँ है ना, ग्रेटर देन बीडीपी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी, ये अगर रिवर्सल बायसेल में बाइंग है ना, तो ही यहाँ पे तभी फिल्टर आता है, होगा, नहीं तो यस। नहीं होगा।
सर एक बार ग्रेटर देन WDP में कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट किया था बट बाइंग में ही आ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये इस रिवर्सल बाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए तो मैं वो चेक नहीं करता हूँ, सिर्फ टेक ऑफ के लिए चेक करना होता है वो वाला। ठीक है, छोड़ो, ये बहुत लंबा हो रहा है, ऐसा मत करो यार, अपनी हाँ। बात को रखने के लिए है ना, अपनी बात को पकड़ के मत रखो इस तरह से। यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई ये ग्रेटर देन बीडीपी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी जो कॉन्सेप्ट है बीडीपी डब्ल्यूडीपी का, वो रिवर्सल बाइसेल का कॉन्सेप्ट है, और वहां पे हम रिवर्सल बाइसेल में जाके टेक ऑफ करते हैं, फिर ही बाइंग की स्क्रिप्ट आती है, लैंडिंग करते हैं तो ही सेलिंग की स्क्रिप्ट आती है, एक। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर मैंने एक भी ट्रेड है ना नहीं समझाया है अभी तक, और मैं अभी घबरा भी रहा हूँ कि इतना पीसीएस पीसीआर 8-10 महीने से मस्त रेडी कर रहा हूँ, वी आर अबाउट टू अचीव 5-7 ट्रेड सेटअप, लेकिन अब इसको सिर्फ मैंने अभी तक दिया है, 2 ही सेटअप दिए हैं, रिवर्सल बाइसेल और आरएआर। उसमें भी अगर ये कंफ्यूजन है, सिंगल क्लिक सिंगल लाइनर बना के दिया है, तो भी हम स्टॉप लॉस भी गलत डिसाइड करते हैं, और प्लस यहाँ पे टेक ऑफ हमने, अगर हमको कितना मस्त सेटअप है, कुछ करना ही नहीं है, अगर मुझे रिवर्सल बाइसेल करना है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि टेक ऑफ भी हो और अकॉर्डिंग टू बाइंग अकरेंस बाइंग भी हो, सिर्फ वही स्क्रिप्ट बाइंग करूँ, उसकी जगह हम रेंडमली कुछ भी करते हैं ना। ये रिवर्सल बाइसेल टेक ऑफ है, ये बाई है दोनों, और इसमें 4 सेटअप है। एक तो स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव बीडीपी, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है, तो डब्ल्यूडीपी के पास बाइंग करना है। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी है, तो इमीडिएटली बाइंग करना है, ये 2। तीसरा है BOR 1 पे जो जो मिल रहा हो, और उसके बाद में जो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी दे, या तो स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी हो तो बाइंग करना है, ये तीसरा ट्रेड है। और जब बाइंग अकर हुआ, रिवर्सल बाई जैसे ही अकर हुए, तो यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल बाय अकर होता है, आज आज कौन कौन से रिवर्सल बाय अकर हुए, वो भी हाथों हाथ हम जाके यहाँ पे अकरेंस डेट दिया हुआ है, इसको हम अगर सॉर्टिंग करें तो डेट के ऊपर सॉर्टिंग करें तो आज देखना चाहिए कि 19 तारीख को पावर ग्रिड बाइंग में आया तो हाउ इट इज बिहेविंग, टाइटन बाइंग में आया तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये सेम डे अगर मैं बाइंग करता हूँ, विप्रो 4 तारीख को बाइंग में आया था, तो 4 तारीख के रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखना चाहिए कि अगर उस पीरियड में जब लाइव में दिखता है कि बाइंग में है और मैं हाथों हाथ बाइंग करता हूँ, तो उस दिन भी क्या कम से कम 2-3% मिला क्या। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का ट्रेड हो गया, जो मैं एक्चुअली एंकरेज नहीं करता हूँ, बट ये इंट्राडे ही है, ये सब इंट्राडे ही है, सब इंट्राडे ट्रेड है ये। जब जब जिस तारीख में जब जब रिवर्सल बाइंग में बाइंग आई है, टेक ऑफ भी हो और बाइंग में, तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये लैंडिंग हो, और ये बोथ कर लिया हमने। और आज जितनी भी स्क्रिप्ट सेलिंग में आई, तो क्या आज उसने 3-4% दिया क्या, कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। अब क्यों यहाँ वहां जाके फिल्टर करते हो ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, सर फिल्टर तो मैंने जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा था उसी वैसे ही किया। ये है ना एनटीपीसी 7 अक्टूबर, ये 19 नवंबर को, आज भेल 19 नवंबर को लैंडिंग भी है, तो हाउ इट इज बिहेव जाके देखो ना। एंड हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग डेज, ये भी देखो। रिवर्सल बाय एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, लैंडिंग में भी है और रिवर्सल सेल भी हुआ है। ये रिवर्सल बाय होके इसमें स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो नाउ कहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, 30 रुपया 80 पैसे से। तो हाउ इट इज बिहेविंग बिलो 30-80, देखो 19 नवंबर को क्या 2880 तोड़ता है क्या। फिर ये डॉक्टर रेड्डी 18 नवंबर का डेट है, जो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइसेल भी सेल है और लैंडिंग होके भी चल रहा है, लैंडिंग में।
सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल क्लिक और आज 18 नवंबर को इसमें ऑलरेडी लैंडिंग से चल रहा है और स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन 18 तारीख को आया। तो कौन से भाव से आया? 4732 में आया और हाथों हाथ लाइव लिखा हुआ आ जाता है 4732 में स्टॉप एंड टू सेल हुआ, इन एक्शन हुआ। तो 4732 कितने बजे हुआ? 18 नवंबर को इतने बजे हुआ, 10:30 बजे। और ये 10:30 5-10 मिनट में वो आ जाता है। बेच दो हाथों हाथ, उसी दिन बेच दो, कुछ तो देगा ही वो। FC 100% आया, स्क्वायर ऑफ कर लो, फिर वापस नेक्स्ट डे जाके बेचो। PCR इज 4781, तो 19 नवंबर को यार में सेल हायर खुला, खुलने दो, बढ़ता है बढ़ने दो, अपने को सेल ही करना है। दो तरीके से सेल हो सकता था। अगर मैंने कल सेलिंग का ट्रेड लिया रहता तो यहाँ पे जब RC 161 100% के पास आया तो BDP के स्टॉप लॉस से भी हम बेच सकते थे। या तो स्टॉप एंड टू सेल में बेचो या तो फिर बेच के बैठे रहो। PCR का स्टॉप लॉस 4795, 4863, 4781, ये तीनों में हाईएस्ट किया है 4863। थोड़ा सिंपल ट्रेडिंग करके रखो प्रदीप, क्या बोल रहा हूँ, 5-10 शेयर एक बार जिसमें सेलिंग करना है ना उसमें 10 सेल करके बैठ जाओ। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। जिसमें बाइंग करना है ना उसमें 5-10 शेयर बाइंग करके बैठ जाओ, फिर वो सेलिंग में सेलिंग हो ही जाएगी, बाइंग में बाइंग हो ही जाएगी। थोड़ा बहुत सिंपल ट्रेडिंग करते रहो। सिंपल ट्रेडिंग अपने व्यू को रीअफर्म करता है, ये सिंपल ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है। कल फिर बिकेगा 4760, फिर आएगा, फिर बेचो। और कब नया टूटेगा? मैं बोल रहा हूँ 47 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो कि यहाँ पे 4647 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो और 5% देगा डॉक्टर रेड्डी। इस तरह से सिर्फ देखो कि हाउ इट इज बिहेविंग, मुझे क्यों बहुत सारे फिल्टर करने हैं, इसको फिल्टर करके भले ही फिर यहाँ पे जाके देख लो ना कि इसमें देखता हूँ जाते ही दिखता है कि भाई स्नेक भी है तो बेस्ट है, लेडर वाला है तो छोड़ दो। अब 5 स्क्रिप्ट में जाके करना है, उसमें और फिल्टर क्यों करना है? 5 ही तो स्क्रिप्ट है। और रिकॉर्ड फिर समरी में स्नेक्स और लेडर्स इतना मस्त साइन बना के दिया है, दिखता ही है। ठीक है ना प्रदीप? जो भी करना है लिख लो, बस पूरी बात का एक्सपेक्टेड एसेंस यही है कि लिख लो व्हाट इज माय स्टॉप लॉस, व्हाट इज माय, मेरा व्यू कौन से भाव के नीचे है तब तक इंटैक्ट रहेगा। ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड। विनोद बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आरईसी में जाएंगे, रिवर्सल बाय सेल का सेटअप। REC आरईसी ये सब ट्रेडिंग मेथड, ट्रेडिंग सिस्टम, ये सब करते करते आ ही जाता है भाई। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, यस सर। उससे कन्विक्शन आता है और कुछ भी नहीं। हाँ बोलो REC। सर आरईसी 1311 को स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू बाय अबोव डब्ल्यूडीपी हुआ है, कंप्लीट टर्न अराउंड और टेक ऑफ होके भी चल रहा है। लेकिन सर आज उसने स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल बिलो डब्ल्यूडीपी दिया है, तो क्या हमें फोल्ड करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? कहाँ हुआ स्टॉक इंस्टीट्यूशन बिलो WDP? सर 1911 आज हुआ है, आप ओपन करेंगे ना एसएनआर टू बाय सेल की कॉलम तो आएगा। स्टॉक इंस्टीट्यूशन RC बिलो BDP हुआ है। बिलो बीडीपी हुआ है, लेकिन सर वो 61.8 से हुआ है, तो कंसीडर करेंगे कि नहीं? मैंने तो नहीं किया है कंसीडर। कौन से भाव से हुआ? 114.15 ट्रेड किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आया स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल इन आरसी बिलो बीडीपी। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आया रहेगा। FC सर 61 ट्रेड करने के बाद लिखा हुआ आया रहेगा। यस यस यस, बाद में आया सर। 114 पहले तो अबो BDP लिखा होगा, जब यस, FC 61.8 ट्रेड किया तो बिलो BDP बिलो बीडीपी यस। होगा। लेकिन सर मेरा वही क्वेश्चन था, 61.8 कंसीडर करेंगे कि फिर 100% ट्रेड होने की वेट कर रहा?
ऑब्वियसली सामने WDP है, तो क्या करो? वेट करेंगे सर, फोल्ड नहीं करेंगे। सामने WDP भी है, राइजिंग चैनल में से टूटते 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 फॉलिंग से 100% आएगा, ऐसे कैसे FC 100% को WDP सबको साथ में ट्रेड कर देगा? यस सर। सर तो वही 5% वाला ट्रेड था, तो मैंने होल्ड ही किया उसको। होल्ड कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाय अबव WDP हुआ 13-11 को, यस 115-35 से हुआ, एक बार के लिए हमने ले इमीडिएट लिया, बाय। यस यस, बट लेकर अकरेंस पीरियड में हमको पोजीशन क्या करनी है? स्क्वायर अप करनी है। अब 13-11 को प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, Prices are rising when it will continue to rise further, when 118.45 trades on higher side, when it will stop rising and start falling, when 109.85 trades on lower side. जब तक 118-45 हायर से ट्रेड नहीं करेगा तब तक कहीं ना कहीं 111 या 113.80 या PCS 109.85, ये तीन में से कहीं भी एक जगह मिलेगा ना नीचे में, यस सर। तो वहां जाके बाइंग करना है ना, होल्ड तो क्यों सर करना? आज 1911 को फिर से SNR टू बाय अबाउट WDP हुआ था मॉर्निंग में, हाँ, लगा कि करेक्शन एंड कंप्लीट है, ओरिजिनल अप ट्रेंड भी ऐसा मैंने ये सोच अगर के बाय किया था। बाइंग करके बैठे हो तो गलत है, और ओके, अगर आज नहीं 13 को किया, नहीं किया, आज किया। उल्टा 17 को 12 में मिल रहा था, मालूम हो कि भाई ये 111 से 118 में क्या करने वाला है, ट्रेड करने वाला है, यस यस यस। 12 में लिया 18 में बेचा, यहीं पे एक 5% हो जाता, राइट। फिर वापस से ले लो। ये एक मत चुको भी, ऐसे पोजिशनल ट्रेडर पैसिव ट्रेडर है ना, बाइंग कर रहे हो मतलब एक बात तो कंफर्म है, प्राइसेस आर राइजिंग। यस अब सिर्फ दो क्वेश्चन पूछना है, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, व्हेन इट विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, इसका जवाब लिख लो, देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। सर मैं ट्रैकर भी लिख रहा हूँ जो आपने भेजा था ना, तो उसमें आपने एक 5th लाइन में लिखा है कि फोल्ड इन 3 वेज, SNR टू सेल बिलो BDP, SNR टू बाय बिलो WDP एंड फेसिंग रिसेंट हाई। तो मैंने जस्ट इसके लिए आपको पूछा कि SNR टू सेल बिलो BDP हुआ है तो क्या हमें फोल्ड करनी चाहिए कि नो प्रॉब्लम? फोल्ड कर देनी चाहिए, अगर आपको कंसिस्टेंटली आप क्या अडोप्ट करना चाहते हो? सर यही 3 वेज। 3 वेज में कौन सा वे? स्टॉप एंड टू सेल बिलो BDP, अगर इग्नोर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो स्टॉप एंड टू सेल बिलो BDP हुआ, अगर इसको हम अडोप्ट करते हैं तो निकल ही जाओ, बिकॉज अब ये बढ़ेगा तब जब, ये बढ़ना तो बंद हो ही गया ना एक बार के लिए, स्टॉप एंड टू सेल BDP हुआ है, इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर ओनली व्हेन 118.5 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, इसने रोक दिया रास्ता बढ़ने का। यस सर। इसके लिए हम कहते हैं कि स्टॉप एंड टू सेल बिलो BDP हुआ है तो 5% देगा कैसे? स्मूथली नहीं देगा, क्विक नहीं देगा, रुला रुला के देगा। ओके सर, ठीक है सर, लेकिन ये तो हमें तभी पता चला ना कि 114.15 ट्रेड किया तभी हुआ। हाँ हाँ, नहीं तो कोई बात वही नहीं, था। आपको पता चल गया ना, कल फिर निकल जाना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्ट्रेटेजी आप क्या बनाते हो ये देख लो, कि आप हम WDP के स्टॉप लॉस से होल्ड ही करना चाहते हो, या फिर स्टॉप लॉस टू सेल बिलो, कभी रेंडमली नहीं करना कि कभी ये किया कभी वो किया। नहीं सर, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एनी वन वे ऑफ ट्रेडिंग। यस 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 सर। पूरे कल तो 119 ट्रेड कर ही लेगा यार रिसेंट हाई इस तरह से, कल जल्दबाजी में मत निकल, देखना कैसे ट्रेड करता है, क्योंकि FC 100% भी इसने ट्रेड नहीं किया है, WDP भी ट्रेड नहीं किया है, टेक ऑफ भी है। 127 आएगा, सपोर्ट 109 ट्रेड नहीं करेगा, जैसा आपने अभी प्रदीप जी को बोला था ना। कहाँ से 127 निकाला आपने? सर ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, 1311 को लिखा है ना सर, 1311 को 1311
1311 को SNR to buy हुआ है ना, क्लाइंबिंग बाय 127.40 एंड सपोर्ट इसका 109.85। जब तक 109 ट्रेड नहीं करेगा 127 भी आएगा और 127 ट्रेड भी कर लेगा। यस सर, वही सर। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ओके सर, थैंक यू। हिरेन लास्ट में आते हो आप, बोलो हिरेन। Good evening, sir. Very sorry. Axis Bank, sir. Reversal buy sell concept. Axis Bank ये टेक ऑफ से चल रहा है एंड कंप्लीट अराउंड बॉय होके भी चल रहा था, बट आज ये जो स्नेक आया हुआ है सर, तो वो स्नेक दिखा के हमको ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय दिखा रहा है, बट द स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय जो हुआ है वो पहले हुआ है एंड उसके बाद ये पीसीएस ट्रेड हुआ है लोअर साइड। सो इस अकरेंस को फिर भी हम कंसीडर करेंगे सर, ये स्नेक वैलिड कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? आप कौन सा ट्रेड सेटअप करना चाहते हो? रिवर्सल बाय सेल का ही ट्रेड सेटअप है। सो उसका रिट्रेसमेंट प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं 611 तक, जो आज हो गया। कहाँ 611? 18th का पीसीएस सर, सॉरी 17th का। 17 का 611 कहाँ से लाए? पीसीएस जो है सर 611.10। तो मैंने अभी कहा है जैसे दो कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो, इसको हम पीसीएस पीसीआई को इंडिपेंडेंटली सीखेंगे अलग से। आप सिर्फ इतना देखो कि रिवर्सल बाइसेल और बाइंग है, टेक ऑफ भी है, बाइंग का अकरेंस भी है, तो उसमें जो हमारे पास 4 ट्रेड वो कर लो, और उस 4 ट्रेड में करते समय सिर्फ इतना देख लो, बाइंग करता हूँ तो यहाँ पे डार्क रेड कलर का स्नेक नहीं है ना, डार्क ग्रीन लेडर है ना, बस है। नहीं बट सर रिट्रेसमेंट मेजर करने के लिए पीसीएस यूज नहीं करेंगे। आप कर रहे हो तो इसका व्यू तब तक वैलिड है जब तक 544 के ऊपर है, जो हम नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इतना ही करो यहाँ पे, तो जब 544 आएगा तो काम आएगा, तब वो BOR1 कहलाएगा। ये इतना ही करो कि इसमें एक्सिस बैंक आ रहा है, सर रिपोर्ट में आएगा, ये मालूम है क्योंकि दिख रहा है वहां पे टेक। मैं वो पीसीएस मर्ज इसलिए कर रहा था सर, तो बिकॉज रिट्रेसमेंट हम मेजर कैसे करेंगे वरना सर उसका? तो सब नेक्स्ट लेवल का स्टडी हो गया यार। आप जो बोल रहे हो सही हो, बट मैं कैसे उसको एक्नॉलेज करूं, क्योंकि फिर वो यहाँ पे जो अटेंडीज है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप रिट्रेसमेंट को मेजर करना है कि कब बाइंग आई, 18 को बाइंग आई, करेक्ट। तो यहाँ पे 18th में आ जाओ सीधा, और एक ही बात पूछो, राइट। प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग? राइजिंग। राइजिंग। प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग? प्राइसेस आर राइजिंग। क्यों वॉइस ब्रेक क्यों हो रहा है इतना? Prices are rising. It will continue to rise further when 645, 55 trades on higher side. It will stop rising and start falling when 620 and 40 trades on lower side. बस। और आज जब 19 नवंबर को 629 40 लोअर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, तो वापस अब बोलो कि when prices are rising or falling according to reversal buy sell, rising, when it will continue to rise further when 621 trades on higher side and first journey will be 645, and when 645 trades on higher side it will continue to rise further, when it will stop rising and start falling when 600 trades on lower side. बस keep it simple. अंडरस्टूड। सिर्फ सर आज का प्लान खोलेंगे एक मिनट, बिकॉज ये 629 का जो पीसीएस लोअर साइड ट्रेड हुआ है, ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होने के बाद हुआ है। सो मेरा आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम
इफेक्टिवली देखेंगे तो ये 629.40 का जो पीसीएस था वो ब्रेक हुआ है। दिस इज क्लोज विद रेजिस्टेंस करेक्ट ओनली। तो यहाँ पे करेक्ट स्टॉप एंड यूज बाई भी है, स्टॉप एंड यूज टू सेल भी है, बोथ अकरेंस इज देयर। नहीं हो गया ना, करेक्ट राइट 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 हो गया। एंड रजनी होते ही समझ में आ रहा है कि भाई उसको यहाँ से एक बार के लिए it is trapped between these two prices। जो आज का स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट और दोनों के बीच में ट्रैप हो गया। अब दोनों में से जो भी हायर साइड ट्रेड करेगा इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, और लोअर साइड ट्रेड कर लिया इट विल अप्रोच 544 आल्सो, फिर वहां से बाइंग आएगी। करेक्ट और हमेशा फाइन फाइन अंडरस्टूड के अकरेंस में बाइंग होने के बाद में हमने यही सीखा है कि किसी से भी ट्रेड करे तो बाइंग करो, या तो स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WTP हो तो बाइंग करो, या तो BOR 1 यानी कि 544 के पास आ गए तो बाइंग करो। उसमें दी बेस्ट है BOR 1। करेक्ट BOR 1 पे रोज 3-4 स्क्रिप्ट मिलती है रोज। राइट राइट एंड फ्रॉम हियर ओनली नो इट इज गिविंग ये 544 से जैसे ही बाइंग आती है ना, तो जिस दिन बाइंग आई थी ना 18 नवंबर को, ये 645 तो ट्रेड कर ही लेगा। 544 आने के बाद में जो भी बाइंग आती है इन 3 ways, फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP and closes with PCS, और 544 आने के बाद में स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WTP और वन लेडर, जो कुछ भी है समथिंग सम बाइंग शुड अकर दैट विल स्ट्रेट टेक इट टू 645। इट विल मैनेज टू ट्रेड 645। ऐसे ऐसे करो। ऑलराइट दिस द बाय ऑन रिट्रेसमेंट 10% फाइन फाइन 15%। ठीक है ना? फाइन ठीक है सर थैंक यू। ऐसा होता है तो वापस यहाँ पे एक्नॉलेज करना कि ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे है ना, मैं बार बार ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि मैं डर डर के दे रहा हूँ, और मुझे लगता है फिर ऐसा कि भाई ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा फॉलो कर पाएंगे, ऐसा करना चाहिए। मुझे अभी जितना आता है ना उतना नहीं देना है, वैसे नहीं देना है। मैं 2-2.5-3 साल से और लास्ट 2 महीने बस चेंज हो रहा हूँ कि भाई 80% 90% लोग जो फॉलो कर सकते हैं ना सिंपल वे में, उतना ही देना चाहता हूँ। आप क्या सीख सकते हो, आप क्या समझ सकते हो, आप लोग क्या फॉलो कर सकते हो, उतना ही देना है। मुझे जो आता है ना वो मैंने दे दे के देख लिया भाई। आई डोंट नो व्हाट इज हाउ इट इज हैपनिंग, क्योंकि वो भी आ सकता है, इजी है, सिंपल है। वेबिनार सुन के या मुझे सुन के नहीं आएगा। उसके लिए जो हमको कम से कम 5-7 स्क्रिप्ट बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे कि भाई ये इसको हम बंद कर दें। 2018 से हम एक्सिस बैंक रखे और इसको लिटरली क्लोज ही कर दें। इसके लिए ये प्ले बटन, इसको हम लिटरली क्लोज कर दें प्ले करने के बाद में, और एक एक अकरेंस में हम लिखे और हमको खुद को कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आ जाए। बस एक ही तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन लेना है, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, व्हेन इट विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग। इसको बंद कर दो। एक एक बस एक एक अकरेंस लिखते जाओ, हाउ इट इज बिहेविंग, आता जाएगा। करेक्ट करेक्ट ठीक है। नहीं आई हैव फॉलोड दिस सर। इनफैक्ट मैं सर रिवर्सल बाय सेल का जो हमारा कंसेप्ट है वो डेडिकेटेडली फॉलो कर रहा हूँ मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हाउ आई एम wondering and worried actually whether whatever I'm teaching, whatever I'm sharing, whether it is able to reach to everyone. Everyone means everyone. ठीक है ना? राइट सर राइट श्योर सर। तो जाऊँ मैं सैलरी तो होगी ना? कमलेश भाई बोलो। જય શ્રી કૃષ્ણ સર। हाँ સર લેટ થાય તો પછી વાત કરીએ। करिए ना, काले करिए। જી જી સર। Good night everybody. Love you all.